Today I will discuss a new topic of this chapter, that is role and importance of human capital formation in economic development. Okay, first of all, what is human capital formation? Human capital formation is that process in which the efficiency of a person increase, productivity of a person increase, skill of a person increase, life expectancy of a person increase, people enjoy longer and better life. It is known as human capital formation. So human capital formation means increase in knowledge, increase in efficiency, increase in productivity, increase in life expectancy of a person, people enjoy longer and better life, the status of the person increase. It is said to be human capital formation. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन की अगर इफ़िशेंसी इंक्रीज हो रही है, एक पर्सन की नॉलेज इंक्रीज हो रही है, एक पर्सन की स्किल इंक्रीज हो रही है, एक पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, वो लॉन्गर एंड बेटर लाइफ इंजॉय कर रहा है, तो इसे कहेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ओके, ये तो सिर्फ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की मीनिंग हो गए. अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, वो हमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है. रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, तो अभी हमने डिफाइन किया कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं. अब हम पहले डिफाइन करेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज दैट प्रोसेस इन विच national income of a country increases, per capita income of a country increases, GDP of a country increases. Okay, and the production of goods and services will also increase. People enjoy longer and better life. Producer use new technique, modern machine for the production of goods and services. Okay, if all these technical changes are take place, if all these institutional changes are take place simultaneously, it is said to be economic development. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक कंट्री में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा हो. अगर एक कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ साथ लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, लिटरेसी रेट इंक्रीज हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए न्यू टेक्निक, मॉडर्न मशीन यूज कर रहे हैं, लोग साइंस पर बिलीव कर रहे हैं, सुपरस्टिशियस नहीं है, इनकम इनइक्वलिटी रिड्यूस हो रही है, पावर्टी रिड्यूस हो रही है. ओके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कंट्री के अंदर इंक्रीज हो रही हैं. अगर ये सारी टेक्निकल चेंजेस, अगर ये सारी इंस्टीट्यूशनल चेंजेस एक साथ हो रही हैं एक इकोनॉमी के अंदर, तो हम कहेंगे कि उस इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. ओके, तो इन शॉर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज कंटिन्यूसली over a long period of time. Side by side, national income, per capita income will also increase, and the status and life expectancy of the people must be increased. People enjoy longer and better life. Producer use new technique, modern machines. Okay, employment opportunities must be increased. Unemployment, poverty must be reduced. Income inequality must be reduced. Okay, if all these technical changes, if all these institutional changes are take place simultaneously, it is said that economic development will take place in that particular country. So it is the meaning of economic development. And human capital formation is that process in which there is an increase in efficiency, increase in knowledge, increase in skill, increase in productivity, increase in life expectancy of the persons. It is known as human capital formation. Okay,
Now we will discuss what is the role of human capital formation in economic development. How economic development can take place due to human capital formation. Okay, what is the role of human capital formation in economic development? What is the importance of human capital formation in economic development? We will study this topic one by one. Okay. तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या रोल प्ले करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आज का टॉपिक है आपका. ओके. फिजिकल कैपिटल लाइक मशीन टेक्नोलॉजी are essential for economic development of a country. Similarly, human capital formation is equally important for economic development. Actually, human capital formation or human development is precondition of economic development. Without human development, economic development cannot take place. Okay. तो जिस तरह से एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फिजिकल कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है मशीन्स और टेक्नोलॉजी. तो अगर एक कंट्री के अंदर हम न्यू मशीन यूज़ करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और जब गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. क्लियर. तो एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फिजिकल कैपिटल यानी मशीन और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. न्यू मशीन और न्यू टेक्नोलॉजी अगर यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज होना, पर कैपिटा इनकम जीडीपी इंक्रीज होना. तो न्यू टेक्निक मॉडर्न मशीन यूज़ करने से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है. जिस तरह से फिजिकल कैपिटल जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इसी तरह से ह्यूमन कैपिटल भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. एक तरह से ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्री कंडीशन है. एक कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि उस कंट्री में इकोनॉमिक ह्यूमन डेवलपमेंट ना हो. ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्री कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसका मतलब ये हुआ कि एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि ह्यूमन डेवलपमेंट उस कंट्री में ना हो. अब इसकी हम एक एग्जांपल देते हैं कैसे ये पॉसिबल है. ह्यूमन डेवलपमेंट में पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर लोगों की इफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लोगों की स्किल इंक्रीज होती है, लोग लॉन्गर लाइफ इंजॉय करते हैं, बेटर लाइफ इंजॉय करते हैं, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती है, लोगों की लिटरेसी रेट इंक्रीज होता है. इसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट. यही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी है. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होगा, नेशनल इनकम इंक्रीज हो, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, जीडीपी इंक्रीज हो, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर होगा. ओके. लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ यही नहीं है कि नेशनल इनकम इंक्रीज हो, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये भी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो, इसके साथ साथ लोग लॉन्गर लाइफ इंजॉय करें, लोग बेटर लाइफ इंजॉय करें, लोगों का स्टेटस इंक्रीज हो, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, लिटरेसी रेट इंक्रीज हो, ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आता है. इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड है. जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होगा. इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पार्ट है. सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. ओके. तो इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट के बगैर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, और ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है.
और पहले ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज विदाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल। ओके, अब हम ह्यूमन जो कैपिटल है या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसकी जो इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ह्यूमन कैपिटल की क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। Human capital formation increase the efficiency, skill, productivity of the person. Efficient persons can perform his duty very well. Efficient person can produce more goods of better quality in minimum time with minimum resources. In this way, he contribute in economic development by producing more goods of better quality. He can also earn more income. Efficient person can also earn more income. Educated person can perform his duty better than uneducated person. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ह्यूमन कैपिटल की जो इम्पोर्टेंस है, उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, इंक्रीज इन इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इफिशिएंसी इंक्रीज होती है, स्किल इंक्रीज होती है। ओके, और जब एक पर्टिकुलर पर्सन की स्किल इंक्रीज होगी, इफिशिएंसी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो वो पर्सन जो है इफिशिएंट पर्सन हो जाएगा। जब वो इफिशिएंट पर्सन जो है वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। इफिशिएंट पर्सन कम से कम टाइम में मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस करता है और गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि वो इफिशिएंट पर्सन है और नॉलेजेबल पर्सन है, वो एक ट्रेन पर्सन है। और वो ट्रेन पर्सन, इफिशिएंट पर्सन कम से कम टाइम में कम से कम रिसोर्सेज से मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस करता है, गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। और जब गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एक इंसान की। जब एक इंसान की इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इंक्रीज होगी तो इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के बाद गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि जब एक इंसान की इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। और जब गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ओके, तो इट मीन्स हम इसमें ये बात क्लियर कह सकते हैं कि अगर सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से एक पर्टिकुलर पर्सन की जो इफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से एक इंसान की जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से एक इंसान की इफिशिएंसी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जब इफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वो ज्यादा गुड्स क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। जब ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगा तो गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और जब गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं उसको। इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी वजह से हुआ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से हुआ। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से एक इंसान की इफिशिएंसी इंक्रीज हुई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम ट्रेनिंग वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में वर्कर की वर्कशॉप करवाई जाती है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ट्रेनिंग से वर्कशॉप से वर्कर की इफिशिएंसी इंक्रीज होती है।
और जब इफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो वो वर्कर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है गुड्स, और जब गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, एक तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। इस तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्री कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, ये सेकंड पॉइंट के अंदर भी डिस्कस किया गया है। सेकंड पॉइंट के अंदर कहा गया है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज efficiency and productivity of the person. When the efficiency and productivity of the worker increase, then worker become efficient person, and this efficient worker can produce more goods in minimum time with minimum resources. When the production of goods increase, then economic growth is take place in the economy. In knowledgeable and skilled worker can efficiently use the resources. An educated and trained person can apply his knowledge and skill in the production of goods. As a result, the production of goods increase, which leads to economic growth. Okay? तो सेकंड पॉइंट में जो है वो ये है, जब एक कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो लोगों की इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जब इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, और जब गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उस कंट्री के अंदर फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जो इफिशिएंट पर्सन होगा वो अपनी नॉलेज, अपनी इफिशिएंसी जो है वो यूज करेगा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में। इफिशिएंट पर्सन जो है वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करता है। ऑप्टिमम यूज का मतलब होता है कि वो इफिशिएंट पर्सन जो है वो मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस करेगा और रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं करेगा। एक जो ट्रेन पर्सन होगा, एक जो एजुकेटेड पर्सन होगा, वो जो है कम वक्त में जो है वो ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगा, और एक एजुकेटेड पर्सन, एक ट्रेन पर्सन अपनी नॉलेज को यूज़ करेगा गुड्स को प्रोड्यूस करने में, कि किस तरह से कम वक्त में ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे सेल इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक अगर एमबीए कर चुका है एक पर्टिकुलर पर्सन मार्केटिंग से, तो वो अपनी नॉलेज यूज करेगा किस तरह से मैं मार्केट कैप्चर करूं, किस तरह से मार्केट शेयर इंक्रीज करूं कि, और कोई अगर पर्टिकुलर पर्सन है, सपोज वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इंजीनियर है, तो वो ऐसी टेक्निक का इनोवेशन करेगा, ऐसी मशीन का इनोवेशन करेगा जिससे कम से कम वक्त में ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो, गुड्स की क्वालिटी भी इंप्रूव हो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, और कॉस्ट कम होने की वजह से प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। तो एक एजुकेटेड जो पर्सन होगा, एक ट्रेन पर्सन होगा, वो अपनी नॉलेज को यूज करेगा, अपनी स्किल को यूज करेगा प्रोडक्शन के अंदर, जिसकी वजह से गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, और जब गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ वो प्रोसेस है जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। इस तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ये सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। सबसे पहले तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स efficient, skilled and healthy manpower. Quality of life means efficient, skilled and healthy manpower. Quality of life depends upon level of education, level of health of the persons. Actually, quality of life can be improved when people enjoy longer life, better life. When people get higher education, there is increase in knowledge of the persons. There is an increase in efficiency and skill of the person.
there is an increase in status of the pupil in the society. It leads to human capital formation, because human capital formation also increase the efficiency and knowledge of the person. जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वो है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ. इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्चुअली क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? क्वालिटी ऑफ, अगर हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है, तो इसका, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है? क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का स्टेटस इंक्रीज हो रहा है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, लोगों की नॉलेज इंक्रीज हो रही है, लोगों की इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, लोगों की एबिलिटी टू डू वर्क इंक्रीज हो रहा है. इसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है. लोग पहले के मुकाबले में लॉन्गर लाइफ, बेटर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लोगों का स्टेटस इंक्रीज हो रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है, लोगों ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, लोग पहले से ज़्यादा फिजिकली फिट हो रहे हैं, लोगों की इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, लोगों की नॉलेज अगर इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो रही है, वो इम्प्रूव हो रही है. और ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं? ये सारी चीज़ें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर होती हैं. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर भी तो यही होता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर भी तो इफिशिएंसी इंक्रीज होती है, लोगों की स्किल इंक्रीज होती है, नॉलेज इंक्रीज होती है, लोग लॉन्गर लाइफ एंजॉय करते हैं, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है, लिटरेसी रेट इंक्रीज होता है, लोगों का स्टेटस इंक्रीज होता है. ये भी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर होता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब लोगों की इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, नॉलेज इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब उस कंट्री के अंदर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है. क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ कब इंप्रूव होती है? क्वालिटी ऑफ लाइफ उस वक्त इंप्रूव होती है जब लोगों की इफिशिएंसी और स्किल इंक्रीज हो, लोगों की एजुकेशन इंक्रीज हो, लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो, लोग फिजिकली फिट हों, लोग लॉन्गर और बेटर लाइफ एंजॉय करें, लोगों की नॉलेज इंक्रीज हो, है ना. तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है. और ये सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर भी होती हैं. इट मीन्स अगर एक कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या होगी, वो इम्प्रूव होगी. ओके, तो ये है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या होती है, वो इम्प्रूव होती है. ओके, ये आपका थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया. लास्ट फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. फोर्थ पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. एजुकेटेड पर्सन गिव मोर emphasis on health. Human capital formation not only increase education efficiency, but human capital formation also increase life expectancy of the pupil. After human capital formation, pupil enjoy longer life and better life, healthy life. Okay, it leads to human development, and human development is the precondition of economic development, because economic development can take place after human development. Okay, जो लास्ट फोर्थ पॉइंट है वो है इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. एक कंट्री के लोग अगर आहिस्ता आहिस्ता एजुकेटेड होंगे तो वो अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देंगे, ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होंगे. और ये बात फैक्ट है कि जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं तो उनको पता होता है कि हम कौन कौन सी चीज़ें खाएंगे जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिट हैं. तो वो मेडिसिन से ज़्यादा अपने फूड पर ध्यान देते हैं.
जिम भी ज्वाइन करते हैं, प्लस जो वॉकिंग भी करते हैं, एक्सरसाइज को भी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। वो सोचते हैं जितना ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, उतना हम बीमारियों से दूर रहेंगे। जितना हम अपने अंदर ह्यूमिनिटी को इंक्रीज करेंगे, उतना हम बीमारियों से दूर रहेंगे, उतना हम मेडिसिन से दूर रहेंगे। और जितना हम फिजिकली फिट रहेंगे, उतना हम अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो एक एजुकेटेड जो पर्सन होता है, वो एजुकेटेड पर्सन हमेशा अपनी हेल्थ पर ज़्यादा एम्फेसिस देता है। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ लोगों की इफिशिएंसी और नॉलेज को ही इंक्रीज नहीं करती, बल्कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज करती है। और जब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है तो लोग लॉन्गर लाइफ और बेटर लाइफ इंजॉय करते हैं, हेल्थी लाइफ इंजॉय करते हैं। और जब लोगों की लोग लॉन्गर लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, अगर लोग बेटर लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, लोग हेल्थी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, अगर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो है प्री कंडीशन है। पहले ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, लोगों की इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, तो वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट हुआ। ओके, तो इसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से सिर्फ लोगों की एजुकेशन ही इंक्रीज नहीं होती, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से सिर्फ लोगों की इफिशिएंसी स्किल ही इंक्रीज नहीं होती, बल्कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, प्रिकॉशंस ज़्यादा लेते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज होती है, तो लोग लॉन्गर लाइफ, बेटर लाइफ और हेल्थी लाइफ इंजॉय करते हैं। इससे ह्यूमन डेवलपमेंट होता है कंट्री के अंदर। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक प्री कंडीशन है। जब सबसे पहले एक ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता। और ह्यूमन डेवलपमेंट जब होगा जब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो, स्किल इंक्रीज हो, इफिशिएंसी इंक्रीज हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, तभी ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। और इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कब इंक्रीज होगी? जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो इन शॉर्ट सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से लोगों की इफिशिएंसी इंक्रीज होगी, लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और जब लोगों की इफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वो कम वक्त में ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जब गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर कंटिन्यूएट डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किस पर डिपेंड करता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। इस तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक प्री कंडीशन होगी। ओके, ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।